going to learn a poem. The name of the poem is Please Listen. So, student, this is ninth standard poem. It's a 4.1. The name of the poem is Please Listen. If we can observe the title of that poem, we can see that the title itself requesting to a parents, to a elders, because the narrator is a teenager. It means the poet trying to tell us that please listen to me. Listen is listen have a two words meaning. First one is a hear and second one is a listen. So both words are similar, but the meaning of the both word is different because listening means listen with concentration, attentively or carefully. But here there is a no effort to hearing. Like if we are going to if we are traveling, otherwise if we are going to here and there, that time we can easily hear the sound of anything like a train, like a car. But for listening, we have to pay attention to our attentively to that matter. So this is the explanation of a title. We have to see the details, but there is a picture on the screen. You can see it. There are some good habits or there are some abilities of a good listener. We have to see it in details. A good listener, हम a good listener किसे कह सकते हैं? First one, जो भी स्पीकर के साथ अच्छे से बिहेव करता है. इट मीन्स आईज ऑन द स्पीकर. स्पीकर जो भी बात कर रहे हैं उसकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए. सेकंड वन इज वी हैव टू क्वाइट अवर सेल्फ. हम लोग को खुद को शांत रहना चाहिए जब भी कोई आगे वाला सामने वाला बोल रहा है. थर्ड वन, ईयर्स लिसनिंग केयरफुली. हमारे कानों को खुले करके हम लोग को सुनना चाहिए जो भी स्पीकर बोल रहे हैं. देन लुक एट द स्पीकर, ऑल्सो सिट स्टिल. देन आस्क क्वेश्चन वेयर इज योर टर्न. जब भी आपकी टर्न हो उसी टाइम पे आपको क्या करना चाहिए? बोलना चाहिए. अगर आप बीच में बोलोगे तो स्पीकर को इससे डिस्टर्ब हो जाता है. देन स्टे पेशेंस. while you are listener, while you are listening to something, that time you have to put some patience in yourself. हम लोग को खुद में क्या पेशेंस बना के रखने चाहिए. इसे हम लोग क्या कह सकते हैं? अ गुड लिसनर. और ये गुड लिसनर क्या हो? तो आप हो. बिकॉज द लिसनिंग स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस पैंडेमिक सिचुएशन. ड्यू टू दिस कोरोना पैंडेमिक, we all know that the interaction between you and us, it means student and teacher, are wholly depending on just listening. तो इसे हम लोग को लिसनिंग स्किल को बेकरार करके रखना चाहिए. क्योंकि अगर हम लोग लिसनिंग प्रॉपरली नहीं करें तो वी कांट गेट अ नॉलेज व्हाट टू से, व्हाट द स्पीकर इज सेइंग टू अस. So you all have to become a good listener. I hope that you will be become a good listener and listen carefully what I am saying to you. So just maintain listening. So the poem Please Listen is written by unknown poem. It means the narrator's name is not mentioned in the poem. So what is the central idea of that poem? Before giving a detailed explanation, I want to know that the Please Listen poem is a poem itself tells us that somebody is arguing to listen to listener problem, others problem, his or her problem. It means the listener, the speaker or the narrator is a he or her, she, I don't know. But the narrator, the poet wants to say something to his elder, to his parents. Otherwise जो भी उसके सराउंडिंग में जो उसके एल्डर्स है उनको एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो उनके साथ थोड़ी सी अर्ग्यू कर रहे हैं कि प्लीज मेरा जो मानना है उसे आप ध्यान से सुनिए. द पोएम प्लीज लिसन इज अ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट टू पीपल who are always trying to advise other and solve their problems, because sometimes people are not listening to us but they are always giving us advice. So the speaker, the narrator wants to listen himself, his problem, his expectation, his feelings carefully. Just the poet says that God has his own way of answering prayer rather than helping the people directly as if by some magic. भगवान जो है वो हमेशा क्या करते हैं? हम लोग की हेल्प नहीं करते, बट ही इज लिसनिंग केयरफुली टू अस. बिकॉज गॉड जो है म्यूट रहते हैं, वो कांस्टेंट रहते हैं. जब भी हम लोग उनके साथ बात करते हैं, दैट टाइम ही स्टे साइलेंट, ही कीप मम, लाइक दैट.
द पोएट हम लोग को कह रहे हैं कि प्रेयर जो है कभी कभार वर्क करती है बिकॉज ही नेवर हेल्प अस। गॉड जो है हमें हेल्प नहीं करते और ना ही डिस्टर्ब करते while we are talking to him. So he helps them by making them capable. वो क्या करते हैं? तो उनको कैपेबल बनाते हैं, उनका स्ट्रेंथ जो है उसको इम्प्रूव करते हैं of dealing with problems, because to deal God wants from us that we have to deal with our problems own self. Okay, we have to defeat our problem by ourselves, not by the help of others, their own and not depending on him. Also God wants that we never want to depend on that particular person, otherwise on God. This is the deeply touching and motivating idea of the poem. So this is very motivating poem. We have to we have to see the difference between hear and listen. These two words are different. I have already explained the title that listen means listen attentively, carefully, but here is a different meaning and listen is a different meaning. So let's see the difference between hear and listen. Hear is the physical activity of perceiving a sound. It happens naturally without any conscious effort. इट मीन्स हेयर जो सुनना जो है वो हम लोग को ऑटोमेटिकली कहाँ से भी हम लोग सुन सकते हैं, उसके लिए स्पेशली एफर्ट करने की जरूरत नहीं। यानी अगर कोई छोटा बच्चा रो रहा है तो उसका साउंड हम लोग को नॉर्मली सुनाई देता है, बट लिसन इज अ विलिंगफुल प्लेइंग अटेंशन while we are listening to something like your teacher are teaching to you. That time you have to listen, not hear. Okay, because you have to pay attention towards teacher, what he's saying, what she's saying. You have to give willingly concentration on that matter. So listening is willingful paying attention to a sound. It is a conscious effort. उसके लिए हम लोग को कॉन्शियस रहना बहुत जरूरी है, बिकॉज लिसनिंग इज अ कॉन्शियस एफर्ट. व्हेन यू लिसन टू पर्सन यू पे अटेंशन टू हिज और हर थॉट्स. जब भी आप कोई लिसनिंग करते हो, दैट टाइम यू हैव टू पे अटेंशन फॉर व्हाट इज द स्पीकर इज सेइंग टू अस. स्पीकर जो है हम लोग के साथ क्या बात कर रहे हैं उसकी तरफ हम लोग को ध्यान देना जरूरी है. So, while hearing, we often do not listen to what the speaker has to say. But अगर हम लोग सुन रहे हैं, it means while we are hearing, that time there is no need to pay attention towards speaker. We can easily hear what is he is saying, okay, what is she is saying. So here and listening, these two words are very different. I explain these two words because listening is most important to us in our life, to concentrate on our life, to solve so many problems. If we are listening carefully, we can solve easily the problem. Okay. So let's start the poem. Uh, First stanza we have to explain in details. Student, I want to tell you that in this poem, the narrator, the speaker is a child. It is a teenager. जो स्पीकर है वो आपके ही एज के है. एंड ऑल्सो देर इज अ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम हिज पेरेंट्स. इस पोयम में जो चाइल्ड है, जो भी टीनेजर स्पीकर बात कर रहा है, वो बहुत ही एक्सपेक्ट कर रहा है फ्रॉम हिज पेरेंट्स, फ्रॉम हिज एल्डर. सो लेट्स सी द फर्स्ट स्टैंजा. When I ask you to listen to me and you start giving me advice, you have not done what I asked. स्पीकर हम लोग से बात कर रहे हैं कि जस्ट लिसन टू मी, डियर पेरेंट्स, डियर एल्डर्स, जस्ट लिसन टू मी. मैं जब भी आपसे बात करता हूँ, जब भी मैं आपको बताता हूँ कि प्लीज आई हैव टू से समथिंग टू यू, यू हैव टू जस्ट लिसन, बट यू स्टार्ट गिविंग मी एडवाइस. Yes, student, you all have faced this situation while you are quarreling with your friends, otherwise some defeats with your friends and neighbors. That time while you are trying to say this thing to your elders, to your parents, that time they can't understand your feelings, they don't listen to you, they just giving a advice. अगर कभी आपके फ्रेंड्स के साथ आपका झगड़ा हो गया हो या तो कोई चीज आपको आपके पेरेंट्स के साथ शेयर करना हो, दैट टाइम वो आपका पूरा सुन के नहीं लेते. दैट टाइम दे स्टार्टिंग द एडवाइस टू यू, यू हैव नॉट डन व्हाट आई आस्क्ड. स्टूडेंट जो है, आप जब भी बात करते हो पेरेंट्स से, वो आपका मान के नहीं लेते, वो सुन के नहीं लेते. सो यहाँ पे थोड़ा टीनेजर नरेटर जो है, ही इज नर्वस, ही इज गिविंग सम आर्ग्यू विथ हिज पेरेंट्स दैट यू हैव नॉट डन, आप वो नहीं करते जो मैं आपसे बताता हूँ. मीन्स आप वो चीज नहीं करते जो मैं आपसे करवाना चाहता हूँ, जो कि लिसनिंग है.
आप खाली लिसन करो, मैं क्या बोल रहा हूँ वो सुनो. ओके. द सेकेंड स्टैंजा इज, when I ask you to listen to me, the line is repeated again. This line is repeated again and again in the poem. When I ask you to listen to me and you begin to tell me why I shouldn't feel that way, you are trampling on my feeling. पोएट जो है वो हम पेरेंट्स के साथ आर्ग्यू करके वो ये बोल रहे हैं कि आप मेरा मानना नहीं, मेरा सुनना जो है, मेरा बोलना जो है, वो सुन के नहीं लेते हैं. एंड यू बिगिन टू टेल मी व्हाई, और उसका रीजन, मैं ऐसा क्यों बिहेव कर रहा हूँ, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, उसका रीजन जो है वो आप बताना स्टार्ट कर रहे हो. बिगिन टू टेल मी व्हाई, कि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ. आई शुडंट फील दैट वे, बट मुझे ये नहीं करना है, मुझे ये चीज नहीं accept करनी है. Whenever the narrator tells his problem to his parents, he begins to explain why he should not feel in that way, that you are feeling, you are asking for something. That time the parents replying to you that the narrator thinks that his feeling have been really crushed. वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ट्रैम्पलिंग करके एक वर्ड है, दिस इज अ हार्ड वर्ड. ट्रैम्पलिंग मीन्स क्रश करना. अगर आप कुछ चीज बताना चाह रहे हो, दैट टाइम टू स्टेप हेवीली ऑन समथिंग एंड क्रश इट. आपके फीलिंग्स को पेरेंट्स क्या करते हैं, क्रश कर देते हैं. बिकॉज यू स्टार्ट रिक्वेस्टिंग टू योर पेरेंट्स दैट प्लीज लिसन, डोंट गिव मी एडवाइस, I will solve my problem, but the parents are always not listening to you, and you are giving, they are giving you something advice. Uh, for example, if you have to just we have celebrated the Makar Sankranti festival. That time you have to make some new. Otherwise, you have to make a kite. Okay, kite making hai. While Diwali vacation will come, that time you have to make a fort. That time your parents always listening to you, but they are over pampering to you. That अगर आपको काइट बनाना हो, that time your parents tell to you that don't bother, don't take tension, I will make it. मीन्स वो आपको कुछ ट्राई करने के लिए नहीं देते हैं. दे आर स्टार्टिंग देयर ओन वे. वो उनके खुद के तरीके से वो जो प्रॉब्लम रहती है आपकी, या तो जो बात आप बताना चाह रहे हैं वो उसको स्टार्ट कर देते हैं, और आपका जो फीलिंग है उसको क्रश कर देते हैं. ओके. सो थर्ड स्टैंडा वी हैव टू सी हियर. When I ask you to listen to me and you feel you have to do something to solve my problem, you have failed me. Strange as that may seem. Strange means unusual, rare. So in this stanza, we can see that the narrator, the speaker, is very conscious about his problem, but he is arguing with his parents that मैं जब भी आपको बात करता हूँ, जब भी आपके साथ कुछ बोलता हूँ, दैट टाइम यू फील यू हैव टू डू समथिंग, आप ऐसा सोचते हो, आप ऐसा मानते हो कि आपको कुछ ना कुछ करना है. बट to solve my problem, that time the parents is pampering you, and वो आपसे ये बात बताते हैं कि आप कुछ न मत करो, मैं कुछ करके देता हूँ. फॉर एग्जाम्पल वी कैन सी दैट इफ द टीचर टोल्ड यू to make a project of something or sub subject, that time your parents, your mothers tell to you that don't worry, I will make it. आप क्या करो, कुछ टेंशन मत लो, मैं आपका प्रोजेक्ट बना के देती हूँ. और जब भी अभी जैसे कि वर्कशीट है, बहुत सारे आपके ऊपर जो भी काम स्कूल से दिए जाते हैं, दैट टाइम योर पेरेंट्स हेल्प्स टू यू. वो हेल्प नहीं करते, वो टोटली आपका काम आपके हाथ से छीन के उनके हाथ में ले लेते हैं. सो दिस इज द ओवर पैम्परिंग. और यहाँ पे जो पोएट है वो हम लोग को क्या बता रहा है, यू हैव फेल्ड मी, आपने मुझे इस तरीके से फेल्ड कर दिया उस एरिया पे. मतलब आपने मेरा जो क्रिएटिविटी था, मेरा जो इमोशंस था, या मेरा जो स्किल था, उसको डैमेज कर दिया. स्ट्रेंज एट दैट मे सीम. और यहाँ पे स्ट्रेंज क्यों है, बिकॉज आप ऐसा करते हो तो आगे जाके वो स्टूडेंट, वो बच्चे आगे जाके कुछ भी नहीं कर सकते. अगर हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो देयर वाज अ स्पैरो. एक स्पैरो थी, और उसके उन्होंने 2 अंडे दिए थे. तो जो एक अंडा था वो फूट के बाहर निकला, और दूसरा जो था उसमें से जो छोटा बच्चा स्पैरो का बाहर आने वाला था, वो उसको थोड़ी तकलीफ हो रही थी, तो वो स्पैरो ने क्या किया, उसको हेल्प किया. देन आफ्टरवर्ड सम डेज, वो स्पैरो जो है, उसका जो दूसरा वाला बच्चा था, वो खुद से उड़ने के लिए ट्राई कर रहा था. बट ये जो दूसरा वाला था, वो फिर से
ट्राई कर रहा था तो तभी भी उसके मम्मी ने यानी जो स्पैरो थी उसने उसको और पैम्परिंग किया, उसको खुद से उड़ने नहीं दिया। तो जब भी उसने फ्लाई करने के लिए ट्राई किया तो उसकी मोर हेल्प की वजह से वो ज़िंदगी में कभी भी क्या स्काई में जा नहीं सका, वो उड़ नहीं सका। तो दिस इज़ अ ओवर पैम्परिंग। और जो पोएट है, जो नरेटर है, ही वांट्स टू टेल यू सेम थिंग दैट यू आर डोंट ओवर पैम्परिंग मी बिकॉज़ यू फेल मी। आप मुझे ज़िंदगी में यहाँ पे फेल कर रहे हो। आई विल नेवर डू एनीथिंग बिकॉज़ ऑफ दैट ओवर पैम्परिंग। सो पोएट आपको बता रहे हैं कि आपको ओवर पैम्परिंग नहीं करना है। आई कैन डू नेक्स्ट स्टैंजा। लिसन, ऑल आई आस्क इज दैट यू लिसन। डोंट टॉक और डू, जस्ट हियर मी। एडवाइस इज चीप, 20 cents will get you both dear Abby and Billy Graham in the same newspaper। यहाँ पे जो नरेटर है, जो पोएट है, ही इज टेलिंग टू हिज पेरेंट्स दैट जस्ट लिसन टू मी, डोंट गिव मी एडवाइस। आप मुझे एडवाइस मत करो, मैं खुद से कर लूंगा। यू जस्ट लिसन टू मी। इफ आई वॉन्ट द एडवाइस, इफ आई वॉन्ट सम सजेशन, दैट टाइम आई विल नेवर टेक फ्रॉम यू, आई विल गेट फ्रॉम नॉलेजेबल पीपल लाइक अ डॉक्टर, एस्ट्रोलॉजर। और यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है पोएट ने कि इन अ 20 cent जो एडवाइस है वो बहुत ही चीप है, बिकॉज द चाइल्ड गेट एडवाइस फ्रॉम एनी वन, द पेरेंट्स, एल्डर, योर नेबर, अदरवाइज योर फ्रेंड्स, दे आर ऑलवेज गिविंग यू एडवाइस। जो एडवाइस जो चीज है ना वो बहुत सस्ती में मिलती है। आप सबने सुना रहेगा कि जो एडवाइजिंग है बहुत ही सस्ती है और वो कहाँ पे भी मिल जाती है, फ्री में। उसके लिए हम लोग को कुछ पैसा स्पेंड नहीं करता, हेल्प के लिए स्पेंड करना पड़ता है, बट एडवाइस के लिए देयर इज नो नीड टू स्पेंड समथिंग, इट इज फ्री, टोटली फ्री। ओके, सो द चाइल्ड सेइंग टू हिज पेरेंट्स दैट डोंट गिव मी एडवाइस, आई विल take the advice. If I want the advice, I will get from a knowledgeable people. Here is a example of Dear Abby and Billy Graham. Billy Graham जो है वो it is a column in the newspaper. In the newspaper, there some students, some persons asking their question, share their problems, and the expert, the knowledgeable people giving their advice to him with a 20 cents। 20 cent का जो मतलब है, यानी आज के जमाने में हम लोग 20 पैसे में बोल सकते हैं। 20 cent मीन 100 cent मीन्स अ $1। सो यहाँ पे पोएट जो है वो बताना चाह रहे हैं कि किस तरीके से ये जो एडवाइस है वो कितनी चीप है, कितनी सस्ती है। तो आपने देखा रहेगा कि न्यूज़पेपर में यहाँ पे मैंने आपको 20 सेंट का एक एग्जाम्पल दिया है कि बिली ग्राम करके एक कॉलम आता है, यहाँ पे मैंने आपको पिक्चर भी दिखाया है। सो इफ यू ऑब्जर्व दिस पिक्चर यू कैन से दैट देयर इज अ कॉलम इन न्यूज़पेपर, 20 सेंट न्यूज़पेपर। दिस इज अ रेफरेंस टू द कॉलम इन अ न्यूज़पेपर where the people write about their problems and the columnists, जो expert जो है वो offers their advice, their suggestion on that problem, on that particular issue। See if your local newspaper have it, उसमें newspaper में आपको दिखाई देगा। There are some examples of Billy Graham and Abbey। Abbey means the expert। there is a problem, it is wrong to be ambitious, there is answer by expert, it is pleased God when we express to him our thanks and gratitude for his guidance and direction। The second example also the Billy Graham column is, why doesn't God hear me cries for help? Whether it is a physical or a mental anguish, person pain tears us apart। There are some examples I have shown you। By this example, you can get the meaning of Dear Abby and Billy Graham column। ये आपको लोकल न्यूज़पेपर में मोस्टली दिखाई देगा। पीपल जो है एस्ट्रोनॉलॉजिस्ट से और डॉक्टर से आपकी समस्या, आपकी प्रॉब्लम्स, आपके इश्यूज शेयर करते हैं आफ्टरवर्ड्स। उसके बाद आपको क्या कुछ सजेशन मिलते हैं, एंड इट इज वेरी चीप। द पोएट ऑलरेडी सेज दैट the 20 cent is only the price of advice, so it is very cheap। Okay, the poet says getting advice is really cheap in the world, just an amount or the small as a 20 cent the price of a newspaper। the newspaper price यहाँ पे जिस टाइम पे ये पोएम लिखी गई है by the poet, that time 20 cent the price of that newspaper। So they explain, he explained, it means while the poem is written, has written, that time the newspaper price was a 20 cents। So the poet explaining that it is very cheap to get a advice। So can you can get you two of the greatest advisor, their Abby and Billy Graham, in the same newspaper, referring to their advice column in the paper।
So next stanza we have to see in the details one by one. And I can do for myself. And I can do for myself. I am not helpless. Maybe discouraged or faltering. Maybe discouraged or flattering, but not helpless. The poet is very ambitious. He is not hesitating. He is not a helpless. He is trying to say you that please listen to me, dear parents, because I am not helpless. He has a courage. She has a courage. उनमें एक खुद से एक courage है. वो क्या बताना चाह रहे हैं कि मेरे पास उतनी ताकत है, मैं कर सकता हूँ. You just, but हाँ, कि मैं discourage हो सकता हूँ. Discourage means थोड़ा सा लूजिंग स्ट्रेंथ, हम लोग का स्ट्रेंथ जब भी लूज हो जाता है, ओके, दैट टाइम वो हम लोग क्या कर सकते हैं कि व्हाट टू डू, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन, दैट द सेम सिचुएशन ऑफ द पोएट हियर इज डिस्क्राइबिंग टू अस दैट कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं, ये थोड़ा सा मुझे, मैं कंफ्यूज हो सकता हूँ, मैं थोड़ा डिस्करेज हो सकता हूँ. एंड फ्लैटरिंग ऑल्सो, फ्लैटरिंग मीन्स लूजिंग स्ट्रेंथ, ओके, हेजिटेटिंग ऑल्सो, और अ वीक और लैकिंग ऑफ कॉन्फिडेंस, मेरे में कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है. आई विल वीक समटाइम, मैं कभी कभार वीक हो सकता हूँ, बट नॉट हेल्पलेस, but I am not helpless because I can solve my problem. I can do anything, whatever I have to do. I have no. मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, बट कभी कभार लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि उसमें से हम लोग को समझ में नहीं आता है कि व्हाट टू डू, हम लोग को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. उस टाइम पे खाली आप मेरा क्या, मैं जो बात कर रहा हूँ सुन के लीजिए. सो यहाँ पे पिक्चर भी मैंने आपको एक दिखाई दी है कि जैसे पेरेंट्स जो है वो आपको किस तरह से ओवर पैम्परिंग करते हैं, किस तरह से आपकी प्रॉब्लम न सुनते हुए आपको डायरेक्टली एडवाइस करते हैं. तो नेक्स्ट स्टैंजा इज आल्सो हैव अ सेम मीनिंग. व्हेन यू डू समथिंग फॉर मी दैट आई कैन एंड आई नीड टू डू फॉर माई सेल्फ. जब भी आप कुछ ऐसा काम करते हो, व्हाइल यू आर डूइंग समथिंग फॉर मी, while you do something, that time, उस टाइम पे वो काम उसका जो है वो खुद कर सकते हैं. His parents shouldn't accept his feeling. The parents never accept his feelings. They just advising them. Okay? आपको वो हमेशा एडवाइजिंग करते हैं. वो नरेटर जो है, पोएट जो है, उनका ये मानना है कि मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, लिटिल बिट फ्लैटरिंग हूँ, बट मैं जो करना चाह रहा हूँ, आई नीड टू डू फॉर माई सेल्फ. मेरे लिए आप जो कुछ करना चाहते हो, ओके. फॉर एग्जाम्पल, teacher give a lot of homework to you, okay, that time you are telling to your parents that teacher have given lots of homework to me, so what to do. They are not listening to you, they just take a notebook from you and they are trying to write, okay. तो क्या करते हैं पेरेंट्स आज के जमाने में कि यू जब भी आप कुछ बात बताना चाह रहे हैं, वो आपका प्रॉब्लम खुद ले लेते हैं सॉल्व करने के लिए, ना ही आपको कुछ ट्राई करने देते हैं और ना ही कुछ उस पे सुन के लेते हैं. दे आर सॉल्विंग द योर प्रॉब्लम. इट मीन्स आपको वो कमजोर बना रहे हैं, आपको वो मोर वीक बना रहे हैं, बिकॉज आप में ऐसी स्ट्रेंथ होनी जरूरी है कि व्हाइल यू आर फेसिंग some problems in your life, that time you have to solve the problem by your own self, because in your life there will be not your parents till last. While you are facing any problem in your life, that time you have to face it by own self. आपको खुद से उसको सॉल्व करना है, ना कि आपके पेरेंट्स हर टाइम पे आपके साथ रहेंगे. तो ये आपके पेरेंट्स को समझ के लेना है कि यू आर दे आर मेकिंग यू दे आर मेकिंग यू वीक. यू कंट्रीब्यूट टू माय फियर एंड इनएक्यूरेसी. तो इनएक्यूरेसी, देयर इज अ हार्ड वर्ड. इनएक्यूरेसी का मतलब है लैकिंग कैपेबिलिटी, मतलब आपकी जो कैपेबिलिटी, आपकी जो स्ट्रेंथ है, उससे क्या करते हैं वो कम बना देते हैं और वो खुद को कंट्रीब्यूट कर देते हैं. उसमें जो काम है, जो चीज है, वो क्या कर देते हैं, खुद के खुद ही कर देते हैं. इट मीन्स इफ वी विल टेक अ एग्जांपल ऑफ योर पेरेंट्स, while you want to put your bag in your home, अदरवाइज आपको जो कबर्ड में आपके कपड़े हैं उसको अच्छी तरीके से रखना हो, तो दे आर डूइंग द वर्क बाय देमसेल्फ. वो खुद कर देते हैं वो काम, आपको नहीं करने देते. अदरवाइज आपको आपके कपड़ों को आयनिंग करना है, दैट टाइम योर पेरेंट्स विल डू दैट. वो सभी काम कर लेते हैं एंड आपको क्या करने नहीं देते, आपका काम नहीं करने देते. एंड दैट्स व्हाई आपको आपके अंदर वो इनएक्टिविटी क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं. आपको क्या
करते हैं, आपकी कैपेबिलिटी कम कर देते हैं. ऑल्सो दे आर मेकिंग यू वीक. ओके, दे आर फेलिंग टू यू टू टेक अ चैलेंज, टू एक्सेप्ट द चैलेंज. दे आर मेकिंग यू अ हेल्पलेस. आपको वो क्या कर देते हैं, ऐसा समझते हैं कि आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, तो आप उनको उनका खुद का सेटिस्फेक्शन मिल जाता है. दैट टाइम द पेरेंट गेट द सेटिस्फेक्शन फ्रॉम दैट, मेरे बच्चे का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर दिया. वो क्या करते हैं कि जब भी आप उनको बताते हो, while you are telling to your parents that I want to do something, that time the parents always solving your problem, they are accepting the challenge whatever you have taken, and they are making you weak. वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं. दे गेट द सेटिस्फेक्शन ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम. दे फील दैट आई हैव डन whatever my child was want to do, but they never think that the child will be नेवर डू समथिंग इन हिज फ्यूचर. वो आगे जाके कुछ नहीं कर सकता, वो बेकार बंदा बन जाएगा, बिकॉज ही नेवर डन एनीथिंग बाय हिज ओन सेल्फ. वो खुद से कुछ नहीं कर पा रहा, बिकॉज हिज पेरेंट्स ही इज ओवर पैम्परिंग टू हिम और हर. So this is the stanza, the poet saying us that don't do anything what I trying to do, just listen to me. और इसकी वजह से क्या होता है कि पेरेंट्स को तो एक अंदर से फीलिंग आती है कि मैंने कुछ अच्छा काम किया, बट स्टूडेंट जो है, जो बच्चे जो है टीनेजर के एज के, उनमें क्या हो जाता है, कुछ न करने की कैपेबिलिटी रहती है. मतलब वो लैकिंग ऑफ कैपेबिलिटी बन जाते हैं. नेक्स्ट स्टैंजा. But when you accept as a simple fact, but when you accept as a simple fact that I feel what I feel, no matter how irrational, then I can stop trying to convince you. The student, the narrator wants to listen to his parents, to his feelings, his irrational, if the feeling will be irrational, but to find the reason of that feeling or what the drawbacks of that thing, the figure out that matter. जो पोएट है वो बोल रहे हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सिंपल फैक्ट करके आप एक्सेप्ट कर लीजिए, बट आई फील व्हाट आई फील. आप क्या करते हो कि मेरी जो फीलिंग्स है उसको समझ के नहीं लेते. यू कांट अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स, व्हाट आई फील, जो मैं फील कर रहा हूँ, व्हाट आई फील, वही सेम फील करो कि जो मैं फील कर रहा हूँ वो फील कर रहा हूँ. नो मैटर हाउ इरेशनल. मैं ये नहीं जानता कि वो जो फीलिंग्स है, वो जो चीज है कितनी इरेशनल है. इरेशनल का मीनिंग है इलॉजिकल और अनक्लियर. तो यहाँ पे पोएट जो है बताना चाह रहे हैं कि जो मैं फील कर रहा हूँ, आई डोंट मैटर, आई डोंट बिलीव दैट इट इज इरेशनल. मैं ये नहीं सोच सकता कि ये इरेशनल है, इलॉजिकल है, बट दे आई कैन स्टॉप ट्राइंग टू कन्विंस यू. अगर आप ऐसा समझ के लेते हो कि ठीक है मेरा बच्चा ऐसे क्यों कर रहा है, ये आप अगर समझ के लेते हो, खाली सुन के लेते हो, तो मैं फिगर आउट करूंगा कि ये काम जो है मैं करना चाहता रहा हूँ, इट इज रॉन्ग और राइट. वो खुद से क्या करेगा, उसके ड्रॉबैक से वो निकालेगा व्हाट आर द ड्रॉबैक्स बिहाइंड दैट मैटर, और वो ड्रॉबैक्स निकाल के वो ऐसे समझ लेंगे कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. सो ये अगर क्लियर हो जाए कि ये रैशनल भी फीलिंग हो, जस्ट फील व्हाट आई फील. आप खाली फील करो जो मैं फील कर रहा हूँ. डोंट थिंक दैट इट इज इरेशनल. कभी कभार आप बोलते हो कि मुझे कुछ ऐसे करना है, वैसे करना है. दैट टाइम योर पेरेंट्स सेइंग दैट नो 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 डियर, यू डजंट, you can't do this. So I can explain you that Stephen Hawking and lots of scientists have a irrational feelings. Firstly, जो भी ये साइंटिस्ट है उनको भी इरेशनल है, ये इलॉजिकल पीपल है, लाइक अ मैड पीपल. उन्हें जो मैड पीपल है इस तरह से उनको समझा जाता था, उनको ऐसे माना जाता था कि दे आर इरेशनल फीलिंग. बट आफ्टरवर्ड क्या हो जाता है कि जब भी वो उनका मानना फिगर आउट करते हैं, वो क्लियर हो जाता है. दैट टाइम वो क्या कुछ अच्छी चीज होती है, जैसे हम लोग ने बहुत ही एग्जांपल्स देखे साइंटिस्ट की. सो द नेक्स्ट स्टैंजा इज and get about this business of understanding what's behind this irrational feeling. और उस टाइम पे मैं क्या करूंगा कि ये irrational feelings क्यों थी, ये illogical feelings क्यों थी, ये आपको समझ में आएगा. while I have find my own drawbacks, while irrational feelings had happening, that time I will figure out what was the problem, what was the drawbacks of my working. That time the
मैं आपको कन्विंस करना छोड़ दूंगा अगर आप समझ के लेते हो कि व्हाट आई फीलिंग, मैं क्या फील कर रहा हूँ, ये अगर आप समझ के लेते हो तो मैं ये छोड़ दूंगा, ये बिजनेस जो है, ये काम जो है मैं छोड़ दूंगा। गेट अबाउट मीन्स मूव अराउंड, ओके, उससे बाहर निकल जाना। मैं आपको कन्विंस करना छोड़ दूंगा। ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स बिहाइंड द इरेशनल फीलिंग्स, और उसके बिहाइंड इट मीन्स उसके बैकग्राउंड में क्या भी इरेशनल फीलिंग है उसको मैं क्या करूंगा, क्लियर कर दूंगा। और आई विल डिफीट माई प्रॉब्लम बाय माई ओन सेल्फ, वो क्या करेगा, उसका जो प्रॉब्लम है वो खुद से डिफीट कर लेगा, उस टाइम पे आपकी जरूरत नहीं रहेगी। इट मीन्स द नरेटर, द पोएट डजंट वांट टू हेल्प हिम, ही जस्ट वांट टू लिसन हिमसेल्फ बाय यू। इट मीन्स वो पेरेंट्स को खाली सुन के लेना चाह रहा है। एंड व्हेन दैट्स क्लियर द आंसर्स आर, और जब भी वो क्लियर हो जाएगा, व्हाइल द इरेशनल फीलिंग विल बी क्लियर, दैट टाइम ऑब्वियस एंड आई डोंट नीड एडवाइस। और अगर मेरा प्रॉब्लम मेरे से खुद से सॉल्व हो गया तो मुझे एडवाइस की जरूरत है क्या? नो, देयर इज नो नीड टू एडवाइस मी। दैट टाइम आई विल सॉल्व, आई विल हैंडल इट, आई विल हैंडल द सिचुएशन, वॉट एवर आई हैव फीलिंग, वॉट एवर आई हैव डन, आई हैव सॉर्ट आउट माई प्रॉब्लम। सो while I have figured out my problem, that time no need to advise me. Obvious means clear, certain. तो जब भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, जब भी आप मेरे इरेशनल फीलिंग्स को समझ के लोगे, तो उस टाइम पे मुझे ऐसे लगता है, इट मीन्स पोएट को ऐसे लगता है कि ये जो एडवाइस है वो एकदम सर्टन हो जाएगा, मेरा फाइनल हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि मुझे एडवाइस नहीं चाहिए। सो दिस पोएम इज very motivating to your life. You are listening this, you are reading this poem, that time you can feel the same situation with happening with you. So next stanza, irrational feelings make sense when we understand what's behind them. Irrational feelings make the sense when we understand what's behind them. अगर irrational feeling को आप समझ के लेते हो, that time you feel इरेशनल फीलिंग किस तरह से हो गई है, या तो वो इरेशनल भी नहीं थी, ये बेसलेस चीज है कि इरेशनल मीन्स बेसलेस, इलॉजिकल। तो ये इरेशनल फीलिंग्स क्यों थी, ये आपको सेंस समझ में आएगा। वी अंडरस्टैंड व्हाट्स बिहाइंड देम, हम क्या करेंगे, उसका रीजन जो है वो ढूंढ के लेंगे कि ऐसा वो क्यों बिहेव कर रहा था। क्योंकि इफ यू हैव सीन द मूवी तारे जमीन पर, दैट टाइम द बॉय, आपने वो ईशान जो है वो कैरेक्टर उस फिल्म में से आपने देखा रहेगा कि उसको सभी क्या उसके फीलिंग्स को इरेशनल फीलिंग्स उसके पेरेंट्स समझ के लेते थे कि ये बेकार चीज है, इसको कुछ भी नहीं आता, he is mad, he never have a skill of anything, but his teacher understand his feelings. That time the boy was a very great uh, painter, he had made lots of paintings. तो ये क्या है कि हर एक में खूबी रहती है, बिकॉज गॉड हैज नेवर मेक वेस्ट, भगवान जो है वो वेस्ट नहीं बनाते हैं। सो अगर आप उसके फीलिंग समझ के लेते हो तो उस टाइम पे आपको क्या लगेगा कि इट वाज नॉट इरेशनल, वो जो फीलिंग है उस टाइम पे आपको इरेशनल लग सकती है, लॉजिकल लग सकती है, बट उसके आगे जाके वो चीज आपको क्लियर हो जाती है कि इट वाज गुड थिंग। आपको बाद में समझ में आता है कि वो चीज अच्छी थी। वो मूवी में भी यही दिखाया है कि बच्चों की इमोशंस जो है उसको हम लोग को क्लियरिफाई करना चाहिए। वी अंडरस्टैंड व्हाट्स बिहाइंड देम, हम लोग को समझ के लेना चाहिए कि मेरा बेबी जो है, मेरा चाइल्ड जो है, व्हाई द बेबी, माय बॉय और माय गर्ल बिहेविंग लाइक दैट, वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, उसका बैकग्राउंड, उसके इश्यूज, उसके प्रॉब्लम समझ के लेना चाहिए, ना कि उसको एडवाइस करना चाहिए कि लिव इट, आप ऐसा काम ही मत करो, तुम ऐसा मत करो, ऐसा वैसा मत करो, तुम हर चीज पे ऐसा कर रहे हो। सो देयर आर सम टाइप्स ऑफ एडवाइसेस, you have to just focus, you have to just understand the irrational feelings of that child. Next stanza, perhaps that's why prayer works sometimes for some people, because God is mute and he doesn't give advice or try to fix things. This is very most beautiful stanza of this poem, because poet says that समटाइम्स, कभी कभार प्रेयर जो है वो वर्क कर जाती है। प्रेयर में मतलब जो गॉड को हम लोग प्रे करते हैं, जो भी हम लोग विनती करते हैं उसको प्रेयर कहते हैं। तो जब भी पेरेंट्स, जब भी एल्डर्स आपको नहीं सुनते, दैट टाइम द चाइल्ड सेइंग दैट, द नरेटर सेइंग दैट द प्रेयर इज वर्किंग फॉर सम टाइम्स, बट यहाँ पे श्योरिटी नहीं है, बिकॉज जो पोएट है वो हम लोग को बताना चाहते हैं कि हर बार प्रेयर काम करेगा ऐसा नहीं है।
because there is a word sometimes. कभी कभार क्या, sometimes क्या हो जाता है, sometimes for some people. प्रे करती है, प्रे वर्क करती है, बट समटाइम्स कभी कभार, फॉर सम पीपल, नॉट फॉर एवरीवन, फॉर सम पीपल, बिकॉज गॉड इज म्यूट. व्हाई द प्रेयर वर्क्स, प्रेयर क्यों वर्क करती है, बिकॉज गॉड इज म्यूट. दिस लाइन हैव अ डीप मीनिंग. इट मीन्स गॉड इज नेवर डिपीटिंग विथ अस, नेवर नेवर गिविंग अस एडवाइजेस एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स. सो वो म्यूट होके हर कुछ चीज सुन के लेते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन गॉड इज म्यूट एंड ही डजंट गिव एडवाइस. वो अगर आप बोल रहे हो कि गॉड आई हैव टू मेक सम न्यू आइडिया ऑफ बिजनेस, आई हैव टू स्टार्ट माय न्यू बिजनेस, दैट टाइम गॉड नेवर टेल यू दैट how to do, what to do, you can do it, but God just listen to you and he never try to fix the things. It means God never said that take this 2 lakhs rupees and start your business. He just listen to you and just saying, giving you a strength, you have to do it with your own self, with your own power or inner capability. So God is mute and God is never trying to fix the things. God कभी ऐसे नहीं चाहते कि कुछ चीज जो है वो मैं खुद से आपको हेल्प करके दूंगा, वो हेल्प नहीं करते, ना ही कुछ बोलते हैं. जब भी आप कुछ बात करते हो भगवान के साथ, वो सुन के लेते हैं और उसको आपको एडवाइस भी नहीं देते और कुछ चीज फिक्स भी नहीं करते. देन नेक्स्ट स्टैंजा इज गॉड जस्ट लिसन एंड लेट्स यू वर्क इट आउट फॉर योरसेल्फ. गॉड जो है आपका सुन के लेते हैं, आपको जो कुछ काम करना है, गॉड ऑलवेज सेइंग यू लेट इट डू, व्हाट डू यू वांट टू डू बिफोर यू डाई. आपको जो करना है आप कर सकते हो. सो इट आउट फॉर योरसेल्फ, वो आपको खुद को करने के लिए फ्री में, मतलब फ्रीडम देते हैं. सो द लास्ट लाइन इज सो प्लीज लिसन एंड जस्ट हियर मी. तो यहाँ पे पोएट क्या बोलते हैं कि प्लीज लिसन. सो अगर आप मेरा खाली मानना, जो भी मेरा बोलना है, जो भी मेरे इमोशंस है, जो भी मेरे फीलिंग्स है, जस्ट लिसन टू मी एंड जस्ट हियर मी. मेरा केयरफुली लिसन, मतलब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको दोनों वर्ड्स के मीनिंग एक्सप्लेन कर दिया है कि लिसन मीन्स लिसन केयरफुली, टेंटेटिवली, विद कंसंट्रेशन, एंड हियर मी, whatever I am trying to tell you, just listen, just hear to me and don't make a advice, don't give me suggestion, just keep mum. And if you want to talk, अगर आपको कुछ बोलना है, अगर आपको कुछ, आप मुझे कुछ बताना चाह रहे हो, wait a minute, थोड़ी देर आप रुको, for your turn, आपकी टर्न आने दो, एंड आई विल लिसन टू यू, और मैं आपकी बात सुन के लूंगा. ऑथर इज अननोन. सो दिस इज द whole poems. I have explaining whole stanzas that the narrator nervous from his elders, he is trying to give some emotions to his parents, trying to convince his parents, and at the last of the poem he is saying that please listen to me. मैं जो कुछ बोल रहा हूँ वो खाली ध्यान से सुनिए. एंड इफ यू वांट जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल. देयर आर सम हार्ड वर्ड्स मीनिंग ट्रैम्पलिंग मीन्स क्रश, स्ट्रेंथ मीन अनयूजुअल, फ्लैटरिंग मीन्स वीक और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, इनएक्टिव मीन्स लैकिंग कैपेसिटी, convince means adjure, irrational it means illogical, unclear, baseless, obvious means clear. So student, I hope that you all have get the meaning of all stanzas. You will get the meaning. I have explaining the whole poem in this lecture. In next lecture we have to see the appreciation of the poem. There are some figure of speech in the poem, also the rhyme scheme of that poem, and the poetic devices we have to explain in our next lecture. So remember the theme of the poem. Overlook of this poem is the title of this poem is expressing us the emotions of the child. The narrator is a teenager year. Okay, the speaker of the poem is teenager year, seems frustrated, थोड़ा frustrated दिखाई दे रहा है. He requests the parents to listen to him when he has something to say. Also his expectation that the parents should listen his without considering him or his problem. टीनेजर और अनएक्सपीरियंस पर्सन, वो अनएक्सपीरियंस पर्सन करके उसको क्या कहते हैं, a lot of time we have to see that some parents are over pampering, over protective to his child, and due to that reason they could become always failed in his life. They are unable to face some problems in his life. Thank you.